British government ultimately enforced the Act of 1935. But the provisions related with union legislature and executive cannot be enforced. The provisions related with provinces, that is provincial autonomy, has been enforced. And under this act, can say under this new constitution, election for the 11 provinces held in 1936-37, Congress, after assurance of Viceroy that governor will not intervene in day-to-day act of provincial governments, participated. Muslim League and other parties also participated in election. It was the first time a general election for 11 provinces on mass scale held. अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने 1935 के कानून को लागू कर दिया। इस कानून द्वारा केंद्र से संबंधित विधायी और कार्यकारी प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका, लेकिन प्रांतीय प्रावधानों को लागू किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, प्रांतीय विधायिकाओं के लिए 1936-37 में व्यापक पैमाने पर चुनाव हुए। नंबर 2, फेडरल कोर्ट established to see the appeal against existing high courts in India. फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि पहले से अस्तित्व वाले उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है और आगे चलकर भारतीय संविधान में फेडरल न्यायालय का स्थान ही सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तीसरी बात, समस्त विषयों को 3 में विभाजित किया गया, यह चीज भी भारतीय संविधान में लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक के रूप में। इन दिस इलेक्शन ऑफ 11 provinces, namely Sindh, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर province, Bombay, that time Bombay, Central province, present Madhya Pradesh, United province, present UP, Bihar, Odisha, Assam, Bengal, Madras, these were the provinces. And among these 11 provinces, 6 Congress got clear majority, and in 2 others it formed government with the help of other parties. Thus, in 8 provinces, Congress formed government, and the senior leaders of Congress took over the post of Chief Minister, that time called Prime Minister. इस चुनाव परिणाम में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली और 6 में तो उसका स्पष्ट बहुमत रहा, 2 में अन्य की सहायता से उसने सरकार बनाई और इस प्रकार से कांग्रेस के प्रांतीय नेता अब वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय प्रधानमंत्री उनको कहा जाता था, सरकार बनाए और भारतीय लोग मंत्री बने। केंद्र के प्रावधान लागू नहीं किए जा सके थे। कांग्रेस गवर्नमेंट स्टार्टेड टू वर्क वेरी स्मूथली इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, but there was a
dilemma before Congress how to give governance, how to make balance between governance and freedom struggle. कांग्रेस को एक तरफ पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई भी लड़नी थी और दूसरी तरफ प्रांत की सरकारों को भी चलाना था। केंद्र के प्रावधान अभी भी 1919 के कानून के लागू रहे। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या अब 14 हो चुकी थी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट काउंसिल 2 थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 145 members and state council 60 members. In 1935 Act, the proposed number of members were much more, that was respectively 375 and 250. Now, when British government declared the joining of India in World War without consulting Indians, Congress became annoyed with government and Congress ministry resigned from provinces. जब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, एक पार्टी बना दिया, तो कांग्रेस ने इसी इशू पर कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब कांग्रेस पूरी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, सांप्रदायिक प्रश्न बने रहे थे और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग कर दी 1940 में एंड डिवीजन ऑफ इंडिया की मांग कर दी। नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ टू कन्विंस मुस्लिम लीग to leave its demand of partition of India. During World War, August Offer and then Cripps mission came, but the proposals of Cripps mission had been rejected. And the government in provinces also came in direct or indirect authority of Britishers, though the governments there were coalition governments and in some governments there were Muslim League too. And in most of the provinces there were governor rule. After 1945 British government in principle accepted to give India freedom, and in 1946, that is just after the Second World War, it sent cabinet mission plan to give a concrete document, concrete recommendation for the freedom of India. 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार सिद्धांत इस बात को स्वीकार कर ली कि अब भारत को स्वतंत्रता दे देनी है और इस परिप्रेक्ष्य में उसने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा और कैबिनेट मिशन प्लान की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज इन अक्टूबर, बिकॉज फ्रॉम सितंबर आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन. थैंक यू.